Good morning, students. I am Ritesh, your chemistry teacher, and welcome to our next part of chapter 1, that is some basic concept of chemistry. Mole concept. Mole concept, what do you mean by mole concept? So, mole concept is a group of 6.022 into 10 to the power 23 particles. Particles means it may be atom, molecule, or ion of a substance. It's called 1 mole of substance. Let us understand what is 1 mole. 1 mole means, suppose I am saying a dozen, 1 dozen of banana. What does it mean? It means there are 12 bananas. On the same way, 1 mole means that much number, 6.022 into 10 to the power 23. 1 mole means 6.022 into 10 to the power 23. That is called 602 hexillion. That is 602 hexillion. 602 hexillion number. This particular number is called 1 mole. And the number is also called Avogadro number. For gaseous substance, in 1 mole there are 22.4 liters volume at normal temperature and pressure. Suppose that I am talking about 1 mole of carbon. So 1 mole of carbon means that much, yani 6.022 into 10 to the power 23 carbon atoms. 1 mole of oxygen means 6.022 into 10 to the power 23 oxygen. If I am talking about oxygen atom, then it is oxygen atom. If I am saying that 1 mole of water molecule, what does it mean? 1 mole of water molecules means 6.022 into 10 to the power 23 water molecules. 1 mole of electron means what? In the same way, 1 mole of electron means 6.022 into 10 to the power 23 electrons. So suppose that I am saying that number of oxygen atom is 1 mole. If number of oxygen is in 1 mole of oxygen, if it is 6.022 into the power 10 to the power 23, then in how much number of atoms in 3 mole of oxygen? If I am saying, talking about 3 mole of oxygen, multiply by 3. Now, let us understand these things with the help of some numericals. 1 mole means simply Avogadro number. 1 mole means Avogadro number. Particles. अब ये पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस कुछ भी हो सकते हैं. सपोज दैट मैंने बात करा, सपोज दैट आई एम राइटिंग सोडियम 1123. Here 11 is its atomic number and 22 is mass number. It may be, here you can say that it's 23 gram is mass. That is molar mass. Mass of 1 mole. That is, तो what it indicates? सोडियम, सिंपली अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सोडियम, इसका मतलब है कि ये 1 मोल है सोडियम का, और इस 1 मोल के अंदर कितना वेट होगा? 23, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 23. अगर मैं लिखता हूँ 2Na, इसका मतलब हुआ कि ये 2 मोल है सोडियम का. तो अगर 1 मोल सोडियम का वेट 23 है, तो 2 मोल सोडियम का वेट कितना हुआ? 23 इंटू 2 हो गया. अगर मैं लिखता हूं 4 मोल सोडियम, सोडियम एटम, what does it mean? It means 4 into mass of 1 mole of sodium, that is 23. Okay? एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए
गिवन मास अपॉन मोलर मास। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन आपको बोला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम। 100 ग्राम ऑफ सोडियम mass, given mass is, your given mass is 100 gram. Okay, number of moles we have to calculate. Number of moles is equal to given mass upon molar mass. So what is the molar mass of sodium? It's 23. ये कैलकुलेट करने पे जितना भी आएगा वो मेरा नंबर ऑफ मोल्स होगा सोडियम के। अब ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 100 ग्राम सोडियम में, तो 100 ग्राम सोडियम में इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। My next question is calculate the number of iron atom in piece of iron weighing 22.8 gram. If iron का एटॉमिक मास दे रखा है 2.8 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन। इसमें कितने इस पीस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। इन पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर 1 मोल ऑफ आयरन होता तो इस 1 मोल ऑफ आयरन का अब कितना वेट होना चाहिए था। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास आयरन का कितना होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। 56 इज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स 50, ये आयरन कितना है मेरा 1 मोल है, यानी 56 ग्राम आयरन मेरा 1 मोल के बराबर है। 56 ग्राम आयरन होता है तो 1 मोल, इसका मतलब 1 ग्राम आयरन होगा तो 1/56। फॉर 2.8 ग्राम इट्स 1/56 इंटू 2.8 ग्राम। तो ये 2.8 ग्राम के अंदर के नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अच्छा 56 ग्राम ऑफ में इतने मोल हो गए। अब इतना तो मोल हो गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल में कितना हो गया, तो इसमें मैं सिंपली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट मीन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 56। ये जितना आएगा उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे इस 2.8 ग्राम ऑफ आयरन में। ओके, थैंक यू। नंबर्स ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास है 200 ग्राम, किस चीज का, वाटर का है। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले तो गिवन मास तो हमारे पास है 200 ग्राम, बट इसका मोलर मास नहीं पता है। तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं वाटर का। तो वाटर इज H2O। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 1, तो मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16। टोटल मास इज 18 ग्राम। मीन्स इस वाटर का जो मोलर मास हुआ वो 18 ग्राम हो गया।
200 डिवाइडेड बाई 18, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 200 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 11.11। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे पास गिवन हो मास। चलिए एक और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ mass of molecule of CO2. Calculate the mass of a molecule of CO2. Mass of calculate करना है हमें। Next question is calculate the mass of a molecule of CO2. Mass of a molecule of CO2. Calculate the mass of molecule of CO2. तो हम CO2 का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है, तो इसके मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कार्बन 12 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 14.4 यूनिट, और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ग्राम। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं लेता हूं तो इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो गया 44 ग्राम। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि इसमें नंबर ऑफ मास ऑफ, इसमें एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल के मास की बात, ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ CO2 का मास है 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स मींस कितना मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी कि ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल है ये। इतने मॉलिक्यूल का वेट है 44 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो गया, 44 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये है मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा 7.307 इंटू 10⁻⁻23। तो ये 1 मोल का मास हुआ। इट मीन्स क्या है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 में एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि देखना होगा कि टोटल इसका मोलर मास कितना है, 44 ग्राम। इस 44 ग्राम में अगर CO2 सिर्फ लिखा हुआ है, यानी एक मोल की बात कर रहा है, एक मोल CO2 में इतना ग्राम है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं एक मोल में, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का वेट है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वेट 44 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, और ये हो जाएगा आपको एक मॉलिक्यूल का मास। थैंक यू।